Hello friends, myself Sunil Kumar Jadhav. Welcome back to my channel. Here in this session we are going to learn one important topic, that is chapter 15 probability standard 10 mathematics. Here we'll learn about the introduction of probability. It means the theoretical part of the probability we are going to learn in this particular video. So share this video along with your friends to understand this probability chapter quite easily. And this probability chapter is quite easy as compared to other chapter to score good marks in mathematics. So stay with this video up till end. Let us begin. Chapter 15 probability standard 10 mathematics introduction. Probability means संभावना. अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना क्या है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है. इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट मेनली. वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, which is also called as a empirical probability. And another one is a theoretical probability. Which is also called as a classical probability. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? आपने क्लास 9 के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच वॉज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. मीन्स व्हाट कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जब हम कंडक्ट करते हैं तो कितनी बार एक आउटपुट आया और कितनी बार दूसरा आउटपुट आया. मान लीजिए किसी एक इवेंट की बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं टॉसिंग ए कॉइन. अगर उसकी बात करें तो हमने 10 बार एक्सपेरिमेंट किया. मान लीजिए उसमें से 7 बार हेड आया और 3 बार टेल आया. तो दैट व्हाट वी कंसिडर एज ए एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. Experimental probability is a ratio of number of trials in which some given event occurred to the total number of trial of the experiment. मतलब कितनी बार वो आउटपुट आया और कितनी बार हमने ट्रायल की, दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. Comte de Buffon tossed a coin for 4040 times. कितनी बार किया? 4040 times, and he got 2048 hits. And J.E. Carriage tossed a coin for 10,000 times and he got 5067 hit. Carl Pearson tossed a coin for 24,000 times and he got 12012, मतलब 12,012 hits, and remaining are tail. So this is what the experimental probability which you have already learned in the previous standard, that is in standard 9. In standard 10 we are going to learn about this theoretical probability. So let us try to understand what is this theoretical probability is. We can reasonably assume that each outcome head or tail is likely to occur as the other. Means once it will come head, then another time it may comes tail. Or we can say that 50-50 possibilities are there for coming head and tail. This is what theoretically we can think about. We refer to this by saying that outcomes head and tail are equally likely. Means अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे टॉसिंग ए कॉइन, तो हम मानेंगे कि 50% टाइम इट विल कम हेड एंड 50% टाइम इट विल कम टेल, एंड इट इज इक्वली लाइकली. हम कंसिडर करेंगे कि मान लीजिए कि 10 बार किए तो 5 बार हेड आ सकता है और 5 बार टेल आ सकता है. इट्स नॉट द एक्चुअल बट इट इज अ थियोरेटिकली वी कैन एज्यूम. सिमिलरली इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस डाइस, बैलेंस डाइट की बात करें, डाइस के ऊपर कितने नंबर होते हैं? 1 to 6. So we can say there are possibility of getting 1 is how much? तो 1/6. 6 में से 1 आने की possibility 1/6 है. सिमिलर वे 2 आने की probability 1/6 है. 3 आने की probability 1/6 है, and so on this way. Now we will try to understand about the theoretical probability. इसके formula की बात करते हैं. I'll write it here. What is the formula? Theoretical probability of any event E will consider event
E. तो उसकी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E, if we'll denote it by probability of event E, then we'll write the formula number of outcomes favorable to event E divided by what will let's say number of all possible outcomes of the experiment. Number of all possible outcomes of an experiment, but we will not write experiment. I'll say that PE is equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes. I hope you understand कि कोई एक इवेंट हो रही है, मान लीजिए कि हमने कॉइन को टोस्ट किया, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दैट इज आइदर हेड और टेल. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2. और उसमें से हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई को मान लीजिए टू गेट हेड, तो हेड एक बार आ सकता है आउट ऑफ 2, सो 1/2. टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर 1/2. सिमिलर वे मान लीजिए कि हमने वी हैव रोल्ड दी डायस, तो डायस के अंदर नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6. एंड टू गेट 1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/6. 2 की 1/6. 3 1/6 एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ सम. आप ये लिख दीजिए, फिर इवेंट क्या है वो ऊपर लिखिए और फिर सम सॉल्व कीजिए. यू कैन इजीली सॉल्व दैट सम. नाउ हम कोई टर्मिनोलॉजीज जो है इस थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर वो हम समझने की ट्राई करते हैं. वन टर्मिनोलॉजी और वन टर्म दैट इज एलिमेंट्री इवेंट. which we called as a primary event also. तो इसका मतलब क्या है? प्राइमरी इवेंट क्या है? तो एन इवेंट हैविंग only one outcome of an experiment is called, what do we say, is called as a elementary event, or it is also called as a primary event. I hope you understand. The sum of all the probabilities of all the elementary event is 1. We'll write that also. This is an important point. Sum of probability of all elementary event is 1. Always remember this. Another term is a complementary event. What is the meaning of complementary event? The event not occur as A is called as a complementary event of event A. An event not event will say एक इवेंट है E, तो उसकी नॉट इवेंट E उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दैट इज व्हाट वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट E. An event not event E is called complementary event. और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए इवेंट E है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट करते हैं बाय E बार. मान लीजिए कोई एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट A उसको हम डिनोट करेंगे A बार से. तो PA प्लस PA बार ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर 1, because we know that as we said that sum of all the probability of all elementary event is equal to 1. This is PA plus PA bar is equal to 1.
पी ए क्या है, एक इवेंट है, और वो इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार. तो दैट इज व्हाट पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1. दैट इज हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाए तो 1 माइनस पी ए बार, और अनदर वे पी ए बार दैट इज प्रोबेबिलिटी of complementary event of A is 1 minus probability of event A. This is what the formula we have learned. Probability of certain event is 1. This is also you will have to remember. Certain event means what? Which is going to held 100%. Certain, or we can say sure event. उसकी probability क्या होगी? The probability of certain event or a sure event is equal to 1. Say for example, sun rises in east, the probability will be 1. क्योंकि sun हमेशा east में ही rise होगा. It is never possible that sun can rise in west and set at west. So that probability is considered as for certain event. And the probability of impossible event, another event we'll call it as the impossible event. प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? सन राइजेज इन द वेस्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी नहीं होने वाले. तो सर्टेन इवेंट मतलब श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0. श्योर इवेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम कॉइन को टोस्ट करते हैं तो हेड या तो टेल आने की पॉसिबिलिटी इज अ श्योर इवेंट. अगर कॉइन को हम टोस्ट करेंगे, इट्स अ फेयर अनबायस्ड कॉइन, तो क्या होगा? इधर विल गेट इट हेड या तो टेल. ऐसा नहीं होगा कि कॉइन खड़ा हो जाएगा और या तो हेड या टेल दोनों में से कुछ नहीं आएगा. इट इज नेवर हैपनिंग इन द अनबायस्ड कॉइन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट. दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी. तो फॉर इम्पॉसिबल इवेंट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी 0. एंड कोई एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो, मतलब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 0 हो सकती है. मान लीजिए कि वो सर्टेन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एज वी सेड इट इज 1. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट द प्रोबेबिलिटी विल बी 0. एंड सर्टेन इवेंट द प्रोबेबिलिटी विल बी 1. और जो भी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 0 और 1 के बीच में होगी. It would be equal to 1, it would be equal to 1, it would be equal to 0, or it would be in between 0 and 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 1 के बीच में होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी. The probability of any event cannot be more than 1 और cannot be less than 0. आप हमेशा याद रखिए, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 0 और 1 के बीच में होगी, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी. अगर ऐसा कोई भी हमें एग्जाम्पल मिलता है तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट दिस इज फॉल्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 and certain event is 1. Otherwise the probability of any event will be in between 0 and 1. These are the basic theory of the theoretical probability. I hope you have understand this. If you understand this, then in the next part we will try to solve the examples and sums of the exercise. Probability is quite easy chapter and students can score good marks. तो इसीलिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो का टारगेट है एटलीस्ट 1000 लाइक्स. तो आई होप कि आप उसे जल्दी से 1000 लाइक्स करवा दोगे. और मेरे चैनल का एक मैंने मोटिव बनाया है, या तो हम बोल सकते हैं कि एम बनाया है कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द 2022 my channel should have 1 lakh
1 लाख सब्सक्राइबर। तो आई होप आप लोग मुझे इसमें डेफिनेटली हेल्प करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।